Hello students, the study of enzymes is called enzymology. Today in the first lecture of enzymology or about enzymes, we will see the two special characters of enzymes, like its specificity and its working, how they increase the rate of reaction. First of all, we will see what are enzymes. Biochemically, enzymes are biocatalysts. Means they are catalysts present in living organism and increase the rate of reaction, means the speed of the rate of reaction. So, what is their biochemical nature? They may be protein or they may be RNA molecules. So there is a totally wrong notion that all enzymes are protein, but all proteins are not enzymes. That is totally wrong notion, because some RNA molecules also act as biocatalyst and speed up the reactions of in the organism. So these RNA molecules are called ribozymes. Enzymes never used up in the reaction or never break up in the reaction, and after the reaction we can get them as such. But we will see this concept in the specific chapter and the lecture that is known as immobilization of enzymes or immobilized enzymes. Enzymes increase the rate of reactions millions of times. There is a reaction like breaking of hydrogen peroxide into water and oxygen is catalyzed by the enzyme catalase, which increase the rate of reaction 10 to the power 15 times fast. इतने गुना उसकी स्पीड बढ़ा देता है एक एंजाइम। तो ये थी बात थोड़ी सी एंजाइम्स के बायोकेमिकल नेचर की। अब हम इसके दो और कैरेक्टर्स की बात करेंगे। पहला कैरेक्टर, द एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, मीन्स enzymes and their binding with the substrate is possible through a site present in the enzyme that is called, if it is enzyme, this site is called active site, where a specific substrate binds with it. This binding, according to the Emil Fischer, just like a lock and key hypothesis, means the enzyme is just like a lock and the hole is just like the active site and the key is just like substrate. So in the word there is a specific key for each lock. But further studies revealed that according to the induced fit model of Koshland, some conformational changes also takes place in enzymes and also something in the substrate, like this.
So there is a conformational change in the enzyme. Just like जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एक जोड़ी ग्लव्स ले लें तो कोई भी इंसान या कोई फैमिली मेंबर उसको पहन सकता है, भले ही थोड़ा ढीला होगा, थोड़ा सा टाइट होगा, बट वी कैन इंड्यूस्ड फिट इट. सो दैट इज द इंड्यूस्ड फिट थ्योरी ऑफ द कोच-लैंड. Now we will see the another aspect of enzyme and its main role. They increase, speed up the rate of reaction. तो अगर हम इस चीज को समझना चाहें तो क्या समझ सकते हैं कि अगर हम इस रिएक्शन को देखें, ग्लूकोज प्लस ATP, glucose phosphate is formed and ADP is removed. So how it is possible? अगर हम केमिकली देखें तो जब ATP और ADP के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं, क्लोज टू ईच अदर, दे रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं. अब उनको अगर पास लाना है, इनकी रिएक्शन करानी है, तो आपके पास दो ही मेथड हैं, और वो दो मेथड हैं, क्या तो आप उसको हीट प्रोवाइड कीजिए एक्सटर्नल, या आप उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको लो डाउन करिए. तो पहले ये समझना जरूरी है व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी. देखिए, अगर हम बात करें एक रास्ते की, एक पाथ की, जो कुछ इस तरीके से है, और एक कार जो यहां खड़ी हुई है, उसको यहां तक पहुंचना है, तो उसे क्या है, यहां तक के लिए एनर्जी चाहिए. कि कैसे वो इतनी एनर्जी ले ले कि वो यहां तक का सफर तय कर ले इस स्टेज का, क्योंकि उसके बाद तो प्रोसेस अपने आप होनी है. अगर इस स्टेज के पहुंचने के बाद उसको जरा सी भी एनर्जी नहीं मिली तो वो बैक हो जाएगी, और जरा से भी आगे से पुश हुई तो कुछ बहुत मिनिमम टाइम की जो स्टेज है, ये दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट. अब इसको हम अगर ग्राफिकली समझना चाहें तो इसका ग्राफ कैसे बनता है कि दिस इज द एनर्जी, सॉरी, दिस इज द रिएक्शन डायरेक्शन एंड दिस इज द एनर्जी ऑन द वाई एक्सिस. व्हाट विल हैपन? This is the free energy of substrate, and it gets the transition state and changes into the product. Why? It gains energy, and after getting this energy point, this is called transition state. It changes into a product. अगर इस सबस्ट्रेट को इतनी एनर्जी नहीं मिली, जैसे कि इस कार को यहां तक पहुंचने के लिए नहीं मिलती, तो ये हमेशा रिएक्टेंट में ही रहता, कभी प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता. तो अब सवाल ये है कि आखिर एंजाइम क्या करता है. एंजाइम कुछ नहीं करता. एंजाइम इस रास्ते को इतना आसान बना देता है कि भाई अब तुम्हें केवल इतना रास्ता तुम्हारा ऐसा है. बोले बस अब तो हमें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए और जरा सी एनर्जी पर हम यहां पहुंच जाएंगे. अब ऊंचाई आपने कम कर दी है. एंजाइम ने क्या किया, एनर्जी लेवल था उसका जो स्पीड अप होने के लिए, वो उसको लो कर दिया. एंजाइम्स रिड्यूस द लेवल ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. तो ये जो फ्री एनर्जी थी सबस्ट्रेट की और ट्रांजिशन स्टेट की, इसे कहते थे एक्टिवेशन एनर्जी. बस इसी को लो कर देता है एंजाइम, और अब रिएक्शन जो है जब सबस्ट्रेट से बाइंडिंग हो जाती है तो ये रिएक्शन बहुत तेजी से होने लगती है.
तो इस रिएक्शन को अगर हम देखें ध्यान से तो ये कुछ इस तरीके से होती है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स and finally enzyme is removed as such and we get the product. तो यहां ये समझना जरूरी है कि जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो सबस्ट्रेट की फ्री एनर्जी और ये ट्रांजिशन स्टेट की फ्री एनर्जी है, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और उसी को वो लो करता है। कैसे? कि जो मॉलिक्यूल्स पास नहीं आ रहे थे, तो मैंने एक तो आपको तरीका बताया कि हम हीट दे दें तो मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, उनके बीच में बॉन्डिंग होगी। एंजाइम क्या करता है, जब वो एक्टिव साइट में दोनों सबस्ट्रेट्स को अपने लेता है तो उसको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म देता है और कन्फर्मेशनल चेंज करके अपने अंदर और उस सबस्ट्रेट की ट्रांजिशन स्टेट पे चेंज करके उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग मॉडिफाई करता है। इस दौरान एंजाइम में भी कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आते हैं, सबस्ट्रेट भी अपने ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचती है और फाइनली वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। इसको हम एक बहुत अच्छे डायग्राम से समझ सकते हैं, इसको हम आखिर में समझ के मान लीजिए ये एंजाइम और ये आपका सबस्ट्रेट आया, तो क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ये है इस सबस्ट्रेट में चेंजेस आएंगे, कन्फर्मेशन चेंजेस ऑफ बॉन्डिंग। This is the transition state of substrate. Now, after some time, they will change in the product and release the substrate. There is any form that the product may be their breaking of substrate. So this is the product. Such like this is the transition state जिसमें केमिकल बॉन्डिंग के चेंजेस होते हैं और स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है। मैंने यहां तक भी कहा आपसे कि एंजाइम्स में भी कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। कुछ एक दो बातें और बता के आपको हम यहाँ पे खत्म करेंगे। पहली चीज तो ये है कि एक एंजाइम के पास एक से ज्यादा एक्टिव साइट्स भी हो सकती हैं, उसके अलावा कुछ और साइट्स भी होती हैं जैसे कि एलोस्टोरिक साइट। एलोस्टोरिक साइट उसकी बात हम फर्दर लेक्चर्स में करेंगे। तो यहाँ हमने दो चीजें देखी आज के लेक्चर में, जो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर था एंजाइमोलॉजी के, कि द बाइंडिंग of enzyme and substrate is specific reaction, means glucokinase binds with glucose, pyruvate kinase binds with pyruvate, lactate dehydrogenase binds with lactate, lactose sugar. So this is lactate dehydrogenase by the, तो अब that bind with the not the lactose, that bind with the lactase. There is a specific enzyme for each substrate, because just like there is always a specific cap for a specific marker, you cannot fit this cap in this marker, not binding, loose binding, but and this nature is called specific, and most of the reactions are stereo specific, जहां वो एंजाइम इतना भी पहचान सकता है कि ये उसकी डी फॉर्म है सबस्ट्रेट की, या एल फॉर्म है, या सिस फॉर्म है, या ट्रांस फॉर्म है, इस चीज को भी वो पहचान सकता है। दूसरा हमने आपको एक चीज और देखी कि हाउ एंजाइम स्पीड अप रिएक्शन, की जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो कि सबस्ट्रेट की फ्री एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट की फ्री एनर्जी है, उसके बीच का जो लेवल है उसको क्या करता है? कम कर देता है। अब रास्ता जो इतना मुश्किल था वो अब चढ़ाई थोड़ी सी आसान हो गई है, तो रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगी। तो फर्दर लेक्चर्स में हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक एंजाइमोलॉजी के पढ़ेंगे। थैंक यू।